हेलो जिंजर्स एंड चिलीज, आप देखना शुरू कर चुके हैं सफ़रनामा विद बाऊ पीयूष। हे आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नज़र से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भावना, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज भावना का बर्थडे है, तो आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अपना बर्थडे कभी ना कभी हॉली प्लेस में मनाना चाहती थी, और बनारस से खूबसूरत जगह क्या हो सकती है। सो दोस्तों, चलिए चलते हैं सारनाथ, जो बनारस से कुछ 15 से 20 किलोमीटर दूर है। एंड हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अराउंड 20 मिनट्स में हम लोग सारनाथ पहुँच गए। यहाँ पे आप सारनाथ का जो ओपन गार्डन है उसका प्लस म्यूज़ियम दोनों का टिकट्स लीजिए। दैट कॉस्ट यू ओनली 25 रुपीज़। एंड म्यूज़ियम में वीडियो लेना अलाउड नहीं है, सो आप खाली सारनाथ के ओपन एरियाज़ में ही फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। तो चलिए, हमारे गाइड साहब पूरा एक्सप्लेन करेंगे अबाउट सारनाथ एंड द फर्स्ट सर्मन बीइंग गिवन बाय गौतम बुद्धा। बुद्धं शरणं गच्छामि। We are in the campus of the ruins of Sarnath. During the ancient time, the name of Sarnath was Rishipatana or Rishipatana. It means the place where so many monks or saints are living. Later its name change became Sharanganath. It means the Lord of the Earth. And right now its name is Sarnath. Sarnath is the another name of Lord Shiva. Lord Buddha was born in 563 BC. Siddhartha is the childhood name of Lord Buddha. Siddhartha realized, I don't have any knowledge about the universe, and he decided to got knowledge first. And in the age of 29 years, he left their palace on the back of earth in midnight on full moon day and go to the forest. Sarnath was famous for education in that period, but Siddhartha was alone there in Bodh Gaya. Few days later, he decided to got knowledge again and sat under the ficus tree. And after getting enlightenment, he decided to come in Varanasi. And Siddhartha turned the wheel of law and founded Buddhism and delivered first sermon. तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया था। Yes, first sermon. He delivered first sermon. There are 4 kind of stupa has been built by the Buddhist follower. There are so many small rectangular and circular structures. These all are the votive stupa. The big one, so that is the commemorative and relics stupa. So because Lord Buddha delivered first sermon on that place, and he founded Buddhism. तो उस स्तूपा में उनके थोड़े अवशेष बॉडी के अवशेष थे। अवशेष को अगर देखना हो तो वो पटना म्यूजियम में है, आप वहाँ पर रिलिक्स देख सकते हैं। और वाराणसी में देयर इज अ श्रीलंकन टेम्पल, सो इट इज लोकेटेड इनसाइड द टेम्पल। दे केप्ट इनटू द कैस्केट व्हिच इज ओपन फॉर द पिलग्रिम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑन फुल मून डे। अशोकन पिलर व्हिच इज इरेक्टेड बाय किंग अशोका in 3rd century BC, and on the top of that is pillar there was a 4-headed lion, and right now that is the national emblem of India, which is located in museum due to security. And this is the real place where Lord Buddha lived and meditated. Okay. And wherever Lord Buddha lived and meditated, that place commonly known as Mool Gandhputi Bihar. Lord Buddha was here only for 4 years. तो ये मेन स्तूपा है, राइट? That is Dhamek Stupa, and that is the real place where Lord Buddha delivered first sermon and turned the wheel of law and founded Buddhism. Innermost structure, who is made up of clay bricks, which is built by King Ashoka, that is 3rd century BC old. But the outermost structure, who is made up of sandstone, which is renovated by Gupta period kings in 5th to 6th century AD. The height of the stupa is 33.35 meters long. The diameter is 28 meters. और ये सॉलिड स्ट्रक्चर है पूरा, totally solid. और अंदर से हॉलो है कि अंदर से No hollow. सो जिंजर्स एंड चिलीज, डोंट मिस सारनाथ। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एंड काफ़ी आपको पीस देगा ये। यहाँ से अब हम लोग लंच के बाद निकल रहे हैं सूर्या होटल के रेस्टोरेंट कैजर पैलेस में, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ वाराणसी एज फार एज एम्बियंस इज बिंग कंसर्न। फूड वॉज एक्सीलेंट ओवर हियर। अब हम जा रहे हैं लंच के बाद वन ऑफ आवर फेवरेट पर्सनैलिटी के घर, जो 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे,
जय जवान जय किसान उनका नारा था और इंडिया के वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। यस यू आर राइट, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका घर रामनगर में है। कुछ झलक देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी के घर का, उनके बेडरूम का, और जहाँ पे उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा। शास्त्री जी के घर से निकल के फ्रेज याद आता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब हम आ गए हैं रामनगर की फेमस लस्सी शॉप में। नुक्कड़ पे है डोंट गो ऑन लुक्स। लस्सी पे देखिए किस तरह से पहले मलाई डाल रहा है और मलाई पे रबड़ी डाल रहा है। ये 3 लेयर्स ट्रिपल डेकर, कभी भी ना खाया था ना कभी सोचा था। सुना है ना, लस्सी पे मलाई और मलाई पे रबड़ी। व्हाट एन आइडिया सर जी। ऑन द टॉप ऑफ इट देश की मिट्टी को चूमने का भी सौभाग्य मिल रहा है। कुल्हड़ का जो टेस्ट आता है, इट ऑलवेज इनहेंसेस द टेस्ट ऑफ द फूड। अब हम पहुंचे रामगढ़ फोर्ट, जहां से गंगा जी का व्यू ऑसम है। हो सके तो यहाँ से सनसेट का व्यू जरूर लीजिए। यहाँ पे अभी क्लाउडी है तो हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन आप जरूर सनसेट के टाइम पे यहाँ पे आइए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। यहाँ फोटोशूट तो बनता ही है एंड रामनगर का ब्रिज देख सकते हैं। अब अपने होटल जाते जाते गाइड साहब ने एक और सरप्राइज देने का सोच लिया है। ले जा रहे हैं हमको नमो घाट, जो अभी नया ही बना है। एम्बुलेंस जो आप देख रहे हैं नमो घाट पे, ये फ्री ऑफ चार्ज दी जाती है लोगों को, मेनली टू कैरी द डेड बॉडीज टू मणिकर्णिका घाट। ये खूबसूरत नज़ारा बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। टॉप पे व्हीकल्स चल रहे हैं, उसके नीचे ट्रेन चल रही है, उसके नीचे पानी में नाव चल रही है, और साइड पे हम टूरिस्ट। ये गेल का स्टेशन है जहाँ पे CNG रिफिलिंग होता है। द ओनली CNG स्टेशन इन द मिडल ऑफ द वाटर आई थिंक। गंगा जी को फाइनल प्रणाम, एज इट इज़ अवर लास्ट डे इन वाराणसी। यू कैन सी द स्माइल ऑन भावना एंड मृदुल्स फेस। और मेरा इनको वाराणसी में लाना 100% सफल हो गया। टाइम टू बाय स्वीट्स फ्रॉम राजश्री स्वीट्स, जो बनारस की बेस्ट स्वीट शॉप मानी जाती है। सो अपने नियर वन डियर वन, अपने नेबर, जिसके लिए भी आप लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट अलग अलग स्वीट्स का स्वाद जरूर लीजिए। फाइनल गुड बाय फ्रॉम वाराणसी, लिविंग बनारस विद ग्रेट 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 मेमोरीज। एंड जितना सोचा नहीं था बनारस हमें देगा, उससे आई थिंक 100 टाइम्स ज़्यादा दिया है। और बनारस जो कबीरदास का जन्म स्थान है, जाते समय उनकी दुआवाली तो बनती है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, आप हुमन में देखियो मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। सो जिंजर्स एंड चिलीज, हकूना मटाटा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।